Good morning, students. Class 6 English Reader, Chapter 4, How Glooskap Made These Birds. On 11th June, that is Thursday, we started reading this chapter. And as per that, I asked you to do the word meanings of this particular chapter in your fair notebooks. I hope all of you have completed your work and even learned the word meanings. Now, continuing with our chapter, today we'll do some of the book exercises and the question answers. Have a look on this question of page 30. Fill in the blanks with the correct words or phrases from the help box. Here in this green box you can see some words and phrases are given. According to the story, we have to choose a word or a phrase and fill in this 10 sentences accordingly. चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और जो सूटेबल वर्ड या फ्रेज इसमें सेट होता है वो हमें इसमें मेंशन करना है. द फर्स्ट वन इज दिस स्टोरी इज सेट इन कनाडा. ये स्टोरी कनाडा की है. मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स वे अफ्रेड टू सी वुल्फ विंड. जितने भी कैरेक्टर्स इसमें हैं मैक्सिमम सारे वुल्फ विंड को देखकर डरे हुए थे. थर्ड क्वेश्चन, Glooskap could not save the children from wolf wind's attack. जो आंसर है ये है wolf's wind attack. You can see in the green box also it is mentioned. Question number 4. Willow land provided protection for the children. I hope you can see the answers clearly. Fourth answer is Willow land. Wolf wind and charm of the frost were merciless. यानी ये दोनों जायंट्स जो थे इनको बिल्कुल भी दया नहीं आती थी. द आंसर इज merciless. Question number 6. The children asked Glooskap for new life for the leaves. बच्चों ने Glooskap से रिक्वेस्ट की कि वो लीव्स को न्यू लाइफ दे. दिस इज आवर सिक्स्थ आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. The fallen leaves were changed into birds. जितनी भी लीव्स गिरी हुई थी वो सारी टर्न हो गई थी बर्ड्स में. द बर्ड्स लेफ्ट द चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द कोल्ड टाइम ऑफ ईयर. यानी ठंडी के टाइम में ये सारे बर्ड्स वहाँ से चले जाते थे बच्चों को छोड़ के. द चिल्ड्रन फेल्ट कम्फर्ट फ्रॉम द बर्ड्स. उन बर्ड्स को देखकर बच्चे बड़े खुश होते थे, कंफर्टेबल महसूस करते थे. द बर्ड्स वर अ गिफ्ट फ्रॉम ग्लूस्कैप टू द चिल्ड्रेन. ये जो बर्ड्स थे ये एक तरह की गिफ्ट थी ग्लूस्कैप की तरफ से बच्चों के लिए. क्लियर? सो दीज आर योर आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर exercise. I hope it is clear. You can have a look thoroughly and in a similar way with a pencil note down the answers in your book itself. Now moving on to our question answers. Discuss these questions with your partner and then write the answers. Now these question answers you have to do in your fair notebook. Let me read out the first question. What was life like in the night land? Night land जो था वहाँ पे लाइफ कैसी थी? So we have the answer here. You can have a look. Life in the night land was full of fear for the people living there, as every moment they were in terror of the giant wolf wind so called. This is your answer. As he scared them every time, screaming and mourning, all the time destroying the flora and fauna included there. यानी जो वहाँ की लाइफ थी वो डरी हुई थी क्योंकि वहाँ के लोग बिल्कुल डरे हुए थे. हर वक्त उनके अंदर एक डर था, एक टेरर था. टेरर होता है जैसे दहशत कि कभी भी वो वुल्फ विंड आके हम सबको हार्म करेगा, तकलीफ़ पहुँचाएगा. तो इस डर के साथ वहाँ के जो क्रीचर्स थे वो जी रहे थे. दिस वॉज द टाइप ऑफ लाइफ इन द नाइट लैंड. सो दिस इज़ योर आंसर फर्स्ट. Second question we have, what happened to the adults in the Indian village? वहाँ जो विलेज में इंडियंस रह रहे थे एडल्ट्स यानी जो बड़े लोग थे
उनके साथ क्या हुआ? द एडल्ट्स ऑफ द विलेज हु वेंट, हमने स्टोरी में पढ़ा था, वो सी में गए थे, फार ऑफ द कोस्ट फॉर फिशिंग इन द सी, वर कॉट बाय द जाइंट वुल्फविंड and were killed along with their boats which were completely destroyed. यानी जब वो सी में गए थे फिशिंग के लिए तो वहाँ जाइंट ने उन्हें पकड़ लिया था और उन सबको मार दिया, और उसी के साथ साथ उस जाइंट ने उनकी जो बोट्स थी, कैनोस, उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया. सो दिस इज आवर सेकेंड आंसर. मूविंग ऑन टू अ थर्ड क्वेश्चन. Who protected the children from wolf wind? किसने बच्चों को wolf wind से बचाया? The trees of the forest spread their great branches and broad leaves like a huge blanket and protected the children. जब बच्चे विलो विलो लैंड पहुँचे थे तो वहाँ की जो ट्रीज थी उन्होंने अपने ग्रेट ब्रांचेस और जो ब्रॉड लीव्स थी उन्हें एज अ ब्लैंकेट, ह्यूज ब्लैंकेट के फॉर्म में बच्चों को प्रोटेक्ट किया था. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. इन व्हाट वे डिड चार्म ऑफ द फ्रॉस्ट कंट्रीब्यूट टू द चिल्ड्रंस मिजरी? बच्चों को ऑलरेडी वुल्फ विंड परेशान कर रहा था, उसी के साथ साथ एक सेकेंड जायंट आया था जो था चार्म ऑफ फ्रॉस्ट. अब उसने उन बच्चों को कैसे परेशान किया? चार्म ऑफ द फ्रॉस्ट अलॉन्ग विथ द वुल्फ विंड डिस्ट्रॉयड मेनी विलेजेस एंड किल्ड द लीव्स ऑफ ट्रीज लाइक बीच, बर्च, ओक, मेपल, एल्डर एंड विलो. इसने भी वुल्फ विंड के साथ मिलकर बहुत सारे विलेजेस डिस्ट्रॉय किए थे और साथ ही यहाँ विलो विलो लैंड में कुछ जो वीक ट्रीज थी उनकी लीव्स को किल किया था. दैट मीन्स ही किल्ड द लीव्स ऑफ दीज trees whose name are given in this answer. So this is your fourth answer. Moving on to our fifth question, we have, what did the children ask of Glooskap? What did Glooskap provide? यानी बच्चों ने ग्लूस्कैप से क्या मांगा और उसका रिप्लाई क्या दिया ग्लूस्कैप ने. Here we have our fifth answer. The children requested Glooskap to bring back the life of the leaves which were killed, but though it was not possible, Glooskap promised to turn the dead leaves into birds, that is alive birds. बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी ग्लूस्कैप से कि ये जो डेड लीव्स हैं इनमें लाइफ वापस डाल दो, बट ये पॉसिबल नहीं था. सो ग्लूस्कैप प्रॉमिस्ड कि आई कैन डू दैट, आई कैन टर्न दीज डेड लीव्स इनटू बर्ड्स विच आर अलाइव. हमने स्टोरी में पढ़ा है कि उन्होंने उसे कलरफुल वर्ड्स में टर्न कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड दिस गिफ्ट सूट द चिल्ड्रन? ये जो गिफ्ट ग्लूस्कैप ने दी बच्चों को, ये किस तरह उनके लिए बहुत enjoyable थी या हैप्पी मोमेंट था. True to Glooskap words, the birds returned to their birthplace every summer, and on seeing them, the children were happy again and thrilled. जैसा कि ग्लूस्कैप ने कहा था कि हर समर सीजन में ये बर्ड्स अपनी बर्थ प्लेस पर रिटर्न आएंगे और इन्हीं बर्ड्स को देखकर ये बच्चे हमेशा खुश होते थे और उनका डेवलपमेंट होता रहा. सो दिस इज़ योर 6th आंसर. सो वी हैव completed our question answers. I hope you all remember the format you have to follow. Have a look once again. मैंने क्वेश्चंस मेंशन नहीं किए हैं, आप हेडिंग मेंशन करेंगे. उसके बाद जैसे आपको पता है, आफ्टर लीविंग अ लाइन यू विल राइट द क्वेश्चन. यहाँ आपकी हेडिंग आएगी, एक लाइन छोड़ के आप क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद एक लाइन छोड़कर आंसर, एंड आफ्टर एवरी आंसर विल ड्रॉ अ लाइन. इस लाइन के बाद एक लाइन छोड़कर आप सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे, एंड दिस वे यू विल मूव ऑन विथ योर वर्क एज वी हैव डन द प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो.
You can have a look at these answers once again. I am sharing with you. These are the 6 question answers. You have to do it in your fair notebook. Please be careful about your handwriting and please focus on the neatness of the work to be done. I really appreciate the students who keep this instruction followed, that the work has to be done neatly. Now moving on to another exercise of our book, that is on page number 31. This question is based on certain emotions being expressed. यानी जब कोई भी सेंटेंस इसमें जो मेंशन्ड है, इसमें 3 ऑप्शंस हैं जो एक तरह का एक्सप्रेशन है. क्योंकि हमने इस चैप्टर में देखा कि बहुत सारे जो क्रीचर, जैसे जो बच्चे थे, बर्ड्स थे या उन ट्रीज थी, लीव्स थी, उनके एक्सप्रेशन जो रहे वुल्फ को देखकर. सो सिमिलरली इट इज़ इन ऑडियो एक्सरसाइजेस, but I will help you to complete the exercise without the audio. There are many kinds of meats available here. For example, आप मार्केट गए हैं और आप मीट खरीदना चाह रहे हैं. When you see that you find a variety, जब आपको किसी भी चीज़ की वैरायटी मिल जाती है तो जो आपका इमोशन एक्सप्रेस होता है वो होगा हैप्पी. Similarly, the second is, but why are there no apple trees? अब अगर आप कहीं जा रहे हो और आपने देखा कि और बहुत सारे फ्रूट्स हैं बट एप्पल ट्रीज यहाँ नहीं हैं, सो यू हैव ए इमोशन ऑफ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन. दैट इज द आंसर इज कन्फ्यूज्ड. नाउ द थर्ड वन इज, आई वुड सो लाइक टू ईट एप्पल्स फॉर डेजर्ट. यानी जब हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं, मतलब हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग ऑफ, तो यहाँ जो थॉट है कि भाई मैं एप्पल्स खाऊंगा एज अ डेजर्ट, यानी खाने के बाद जो हम डेजर्ट जनरली जो मीठा खाते हैं तो उसमें आई विल हैव एप्पल. तो एक तरह का वो ड्रीमी इमोशन है कि ड्रीम कर, जैसे कोई सपना देखते हैं ना कि ये मैं ऐसा करूँगा या वो करूँगा, दिस काइंड. आई विल प्लांट एप्पल सैपलिंग्स, दे विल ग्रो इनटू ट्रीज. यहाँ इस सेंटेंस में कॉन्फिडेंस है कैरेक्टर का जो कहता है कि मैं एप्पल सैपलिंग्स प्लांट करूँगा, यानी उसकी छोटी छोटी जो सैपलिंग्स हैं वो प्लांट करूँगा जिससे एक दिन ये ट्रीज़ बड़ी हो जाएंगी एंड आई विल हैव मोर एप्पल्स टू ईट. सो दिस इज़ द कॉन्फिडेंट इमोशन. जॉनी, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? कोई कैरेक्टर है जो जॉनी से कह रहा है कि तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो. यानी जो पर्टिकुलर कैरेक्टर जॉनी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ही इज़ इम्पेशेंट, यानी उससे वेट नहीं हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि वेट करना मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है. जॉनी, डू यू थिंक यू विल लिव लॉन्ग एनफ टू सी द ट्रीज? अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो जॉनी से पूछ रहा है कि तुम्हें लगता है कि क्या तुम इतना लंबा जियोगे कि इन ट्रीज़ को बड़े होते हुए देखोगे. तो ये है इमोशन पिटिंग, यानी आप किसी की इमोशंस को ट्राई कर रहे हो टू फाइंड आउट कि उसको कैसा फील हो रहा है. आई डोंट केयर अबाउट दैट. यहाँ जॉनी का रिप्लाई आ रहा है कि मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो यहाँ इमोशन है इनडिफरेंट. माई चिल्ड्रन एंड योर्स विल एन्जॉय द फ्रूट ऑफ आर लेबर, वोंट दैट बी वंडरफुल. यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं और जॉनी आपस में बात कर रहे हैं, तो जॉनी उनसे कह रहे हैं कि मेरे और आपके बच्चे इन फ्रूट्स को एन्जॉय करेंगे. जो सैपलिंग्स हमने आज मेहनत करके प्लांट की हैं और रेगुलर हम जब इस सैपलिंग को नरिश करते रहेंगे तो एक दिन जब ये बड़ी ट्री में ग्रो हो जाएगी तो इसका जो फ्रूट्स है वो हमारे बच्चे एंजॉय करेंगे. तो ये एक तरह की खुशी है. सो यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज़ थ्रिल्ड, दैट दे आर वेरी एक्साइटेड विद द थॉट कि उनका जो लेबर है या उनकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी, उनकी मेहनत का फल उनके बच्चों को मिलेगा. सो दिस अनदर एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन द बुक इटसेल्फ. आप इन आंसर्स को बुक में ही मार्क करेंगे. पेज नंबर 32, आई हैव अनदर एक्सरसाइज टू एक्सप्लेन. द क्वेश्चन हियर इज, कैन यू टेल विच ऑफ दीज इज अ सेंटेंस. यहाँ 3 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें हमें बताना है कि सेंटेंस कौन सा है. जो फर्स्ट है कोल्ड, वो तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा हमें. सेकेंड, इट वॉज अ कोल्ड नाइट, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं एज अ सेंस दैट इट इज़ सेइंग अबाउट दैट इट वॉज अ कोल्ड नाइट, यानी
This group of words are making a sense. That's why we can term this as a sentence. हमारे इस एक्सरसाइज में जो ये 8 क्वेश्चंस हैं, इनमें एक वर्ड अंडरलाइन है. इस अंडरलाइन वर्ड की मीनिंग है इन फ्रेजेस में, जो आपको इस हेल्प बॉक्स में मिलेंगे. अकॉर्डिंगली आपको इसको मार्क करना है कि कौन सा फ्रेज किस सेंटेंस को मैच होता है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, लेटर ही ब्रॉट अ फ्रेंड विथ हिम. इसका आंसर है आफ्टर सम टाइम. आई होप द आंसर्स आर वेरी क्लियर मार्क्ड. यू कैन हैव अ लुक थॉरली. आई एम शोइंग यू द क्लोज पिक ऑफ द आंसर्स. यहाँ लेटर का मीनिंग दिया है आफ्टर सम टाइम, यानी थोड़ी देर बाद, यानी कुछ देर बाद वो अपने फ्रेंड को अपने साथ लेकर आया. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, सम फेल क्विकली. यहाँ क्विकली का मतलब है एट अ फास्ट पेस, यानी बहुत जल्दी जल्दी जो लीव्स हैं ट्रीज़ की वो गिर रही हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सम टुक डेज टू फॉल. यहाँ पे आंसर है अ लॉन्ग टाइम. यहाँ डेज को लॉन्ग टाइम दिया है, यानी इनको फॉल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा. सो सिमिलरली ये सारे वर्ड्स जो हैं अंडरलाइंड, इनके फ्रेजेस इस बॉक्स में मेंशन्ड है. सो यू कैन हैव अ थॉरो लुक ऑन दिस. आप इसे भी बुक में ही मार्क करेंगे. ड्यूरिंग आवर रिविजन पीरियड आई लेट यू नो वेदर यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक और नॉट. सो दिस इज द 4th चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड ऑफ आवर इंग्लिश रीडर. एज आई सेड, जो 3rd चैप्टर है वो हमने अभी नहीं किया है. वी विल डू इट लेटर ऑन. एंड दिस question number B, 6 question answers you will complete in your fair notebook. In our next video, hopefully we'll start with our new chapter. Till then, take care.